الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خضرة حلوة صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات مل کر محبت اور شوق اور ادب کے ساتھ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بعدد معلوم لك دائما أبدا وبعدد كل ذرة ألف مرة. یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے، تقریباً آخری عشرہ ہے. دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بات کی جائے، لیکن وقت اور حالات کے اعتبار سے کیونکہ میں نے مستقل تو یہاں جمعہ پڑھانا نہیں ہوتا، آج پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے. مفتی ارشد صاحب جو کلون مسجد میں ہوتے ہیں حکم فرمایا تو میں نے کہا انشاءاللہ جو چند معروضات ہیں جا کے پیش کر آتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب الجلال مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا مفہوم سمجھ لیجیے. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچ کے رہو. تو بات یہ ہو رہی کہ اے اللہ اولاد اور بیویاں کیسے دشمن ہو سکتی ہیں؟ شادی کا حکم تو رب الجلال کا ہے کہ شادی کرو، بچے بھی ہونے چاہیے، ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، دشمن کیسے ہیں؟ فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ تمہاری دشمن ہے. یہ جنت کا راستہ ہے، اس میں جو رکاوٹ بنے تو سب سے زیادہ رکاوٹ قریب تر بندے بنتے ہیں. قریبوں میں سے سب سے پہلے بیوی ہے، پھر اولاد ہے. وہ اولاد جو وہ دشمن ہے جو راستے میں رکاوٹ ہو، جو راستے میں رکاوٹ نہیں وہ دشمن نہیں بلکہ وہ تو خیر خواہ ہے. اللہ اکبر. تو دیکھو نماز کا وقت ہے، بیوی کا دل چاہ رہا ہے ابھی نہ جاؤ، ابھی تو آفس سے آئے ہیں آپ، کچھ لمحے بھائی اللہ کا حکم ہے، آذان مل چکی ہے، چند لمحے تو نماز پڑھ کے پھر تیرے ساتھ کی ساری رات گزر جائے، سارا دن گزر جائے، تیرے ساتھ ہے. وہ دراصل وہ رکاوٹ بن رہی ہے رب کے راستے کی. یا اسی طرح جی مجھے فلاں چیز چاہیے، میرے پاس تو فرصت نہیں ہے، بھائی کہیں سے لاؤ.
حلال کماؤ حرام کماؤ مجھے پتہ نہیں، مجھے یہ چیز چاہیے، اگر بندہ وہی بیوی کے کہنے پہ کر لیتا ہے، حرام کام کر کے وہ حرام کی کمائی دے دیتا ہے، سمجھو وہ دشمن۔ بچوں کی خواہشات پورا کرتے ہوئے ہم حرام کی کمائیں بھی صحیح اور گھر بچوں کو کھلائیں بھی صحیح، تو یہ بچے دشمن بن جائیں گے گویا کہ تمہارے، جو اللہ کے راستے سے، صحیح راستے سے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو بہرحال میرا جو آج کی تقریر کا موضوع اور عنوان ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں 3 منزلیں عطا کی ہیں، ان منزلوں کو پانے کے لیے انسان کو 3 رکاوٹیں درکار اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پہلی منزل قبر میری منزل ہے، ہماری منزل ہے، اور غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ کیا ہے بھئی؟ قبر میری منزل اور غفلت اس کی رکاوٹ۔ دوسرا راستہ فرمایا آخرت ہماری منزل ہے، دنیا اس کی رکاوٹ ہے۔ کیا ہے بھئی؟ آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا تعلق مع اللہ، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ہماری منزل ہے، اور نفس جو ہے یہ ہماری رکاوٹ ہے۔ تو اللہ نے 3 منزلیں دی، پہلی منزل قبر، دوسری منزل آخرت، تیسری منزل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ 3 منزلیں ہیں۔ پھر انسان کو آگے رکاوٹیں بھی پیش آتی ہیں، تو وہ تینوں کی رکاوٹیں بھی ہیں کہ جب قبر کی طرف انسان کا ذہن کچھ جانے لگتا ہے، موت اور آخرت کو یاد کرنے لگتا ہے، تو غفلت اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جب آخرت کی طرف، جنت اور اللہ کے نعمات کی طرف ذہن جانے لگتا ہے تو دنیا اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ہماری منزل ہے، تعلق بنانا ہے تو اللہ کے ساتھ بنانا ہے، تو رکاوٹ آتی ہے نفس، خود جس وہ خواہشات جو ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہر چیز پر چند معروضات پیش کروں گا۔ فرمایا کہ قبر ہماری منزل ہے اور غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا بھی ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم انسان کیسے عجیب ہیں، موت جیسی حقیقت کو، کہ وہ انسان جس نے اپنے باپ کا اپنے کاندھوں پہ جنازہ اٹھا کے قبر کی گور میں رکھ دیا ہے، وہ بھی موت کو بھول جاتا ہے، وہ بھی قبر کو بھول جاتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کو قبر کی آغوش میں سلا کے آیا ہے، اپنے چھوٹے یا بڑے بچے کو اس قبر کی آغوش میں سلا کے آیا ہے، وہ بھی اس حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر ہماری منزل ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ غفلت ہے جو قبر والی منزل سے دور کر دیتی ہے انسان کو۔ اللہ اکبر۔ دوست سے ناراض ہو جاتا ہے، کیوں؟ کہ بھئی آج پورا دن گزر گیا، تو نے نہ میسج کیا نہ مس کال کی، کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور بیوی کہتی ہے گھر میں دیر سے آتے ہو، تو یہ پتہ نہیں گھر کی یہ ضروریات ہیں، تو تم وہ پورا نہیں کرتے ہو، کیا مطلب؟ تم غافل ہو، تم مجھ سے غافل ہوئے، گھر سے غافل ہوئے، کیا مطلب؟ گھر کی ضروریات تو نے پوری نہیں کی۔ دوست کہتا ہے کہ پورے دن میں اتنا بھی یاد نہیں کیا کہ ایک مس کال کر دیتے، میسج کر دیتے، کال بھی میں کرتا، لیکن کیا کیا؟ اتنا غافل، اتنا بھول چکا ہے ہمیں کہ تو نے ایک کال بھی دن بھر میں میسج تک کر دیتے نہ کی۔ اللہ اکبر۔ مالک اپنے مزدور سے ناراض ہو جاتا ہے، میں نے تجھے یہ کام سونپ کے لیا، واپس آیا ویسے کا ویسا، پورا کام نہ کیا تو میرا دل خوش نہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنے کام سے غافل رہے، تم اپنے کام سے غافل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے تو آپ کے لباس ٹائم ہی نہیں ہے، ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہو، واپس آتے ہو تو بچوں اور بیویوں کے پاس، بیوی کے پاس چلے جاتے ہو، ماں باپ کے ساتھ وقت ملاقات کا یا کچھ لمحے گزارنے کے لیے تو تیرے پاس وقت ہی نہیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا غفلت ہی بنیاد ہے جو ہمیں قبر کی منزل سے دور رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غافل ہونا چاہیے انسان کو، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم پوچھتے ہیں یا اللہ کیا ہونا چاہیے؟
रब ज़ुल जलाल ने फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन, तुम्हें गाफिल नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? दुकानदारी करनी चाहिए। किसने रोका कि दुकानदारी ना करो? बीवी बच्चों का जो ज़रूरियात है वो किसने तुम्हें कहा कि पूरी ना करो? लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए तुम्हें। दुकानदारी पे बैठे हो, ज़ुबान से अल्लाह के जिक्र, काम तो हाथ से किया जाता है, ये ज़ुबान से काम हाथ से कर रहे हैं। कोई चीज़, कोई बिजनेसमैन है वो अपने फाइलें चेक कर रहा है, दिल में हो गलत नहीं काम करना, क्योंकि मैंने मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आखिर हर एक ने तो मौत का ज़ायक़ा चखना है। ये आज का काम गलत मुझे जहन्नम में डालेगा, जिसके लिए कर रहा हूँ वो तो मज़े कर जाएगा, मैं तो जहन्नम का ईंधन बन जाऊँगा। मैंने नहीं जाना, अल्लाह का सामना करना है, तो लिहाजा बच के रहना चाहिए। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन हर लम्हे मौत को बहुत ज़्यादा याद करते थे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि सैयदना फारूक आज़म ने अंगूठी बनाई थी, उस पर लिखा था कफ़ा बिल मौती वाइज़न या उमर, कफ़ा बिल मौती वाइज़न या उमर, कि कब तक मौत तेरे लिए नसीहत नहीं होगी ऐ उमर। किसी का जनाजा देखते वो रो पड़ते, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भी उन आंसुओं से भीग जाती। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद वो गुम हो गई, अंगूठी गुम हो गई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथ एक आदमी रखा, उसे कहा करते थे दिन में वक्तन फवक्तन मुझे मौत की याद दिलाया करो। अल्लाहु अकबर। कौन? हज़रत उमर, जिससे शैतान डरता है, जिससे ज़लज़ले ज़मीन में आए तो वो रुक जाते हैं, एक वो सा ज़मीन पे मारते हैं तो ज़लज़ला बंद हो जाता है। अल्लाहु अकबर। वो दरियाए नील जो उनके ख़त से चल पड़ता है। अल्लाहु अकबर। वो उमर इतना बड़ा, लेकिन मौत की यादाश्त के लिए अपने आप को तैयार रखना, अल्लाह की याद में अपने साथ बंदा रखा है कि मुझे वक्तन फवक्तन मौत की याद दिलाया करो। अल्लाहु अकबर। और फरमाया उस आदमी को जो साथ रहा करता था, चंद दिनों के बाद कहा कि अब तू अपना काम कर सकता है, मुझे छोड़ दे। उसने कहा कि ए उमर, क्या इसके बाद आपको मौत की याद दिलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं? फरमाया अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा करके उन सफ़ेद बालों की तरफ इशारा किया, मेरी मौत को याद दिलाने के लिए ये सफ़ेद बाल मुझे काफ़ी हैं। जब भी मैं अपने चेहरे को आईने में देखूं तो ये सफ़ेद बाल मुझे याद दिलाते हैं तू कब्र की गौर की तरफ बहुत करीब पहुंच चुका है, सुबह शाम तेरी मौत कभी भी आ सकती है। नौजवानों को तो फ़ख्र होता है ना, मैं अभी 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, कुछ नहीं है, कुछ करूँ, भागूँ दौड़ूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं होता। अब बूढ़ा है, चलता हूँ तो थक जाता हूँ, कुछ भी कर, सफ़ेद बाल मेरी मौत को याद दिलाने के लिए काफ़ी। अल्लाहु अकबर। वक्त बहुत कम है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि पहली बात ख़त्म हो गई कि आखिरत, कब्र हमारी मंजिल है, गफलत उसकी रुकावट है। तो अब सारे साथी दिल में तहैया कर लें कि हम अपनी गफलत को दूर कर देंगे। घर में होंगे तो कब्र को और मौत को याद करेंगे, रब की याद से कभी गाफिल नहीं होंगे। और अल्लाहु अकबर, खा बिजनेस करें, अपनी फैक्ट्री में हूँ, शॉप में हूँ, कहीं भी हूँ, हम गाफिल नहीं रहेंगे, वादा कर लें। दूसरी चीज़ फरमाया कि आखिरत हमारी मंजिल है और दुनिया हमारी रुकावट है, दुनिया हमारी रुकावट है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन दुनिया खाज़िरतुन हुल्बतुन, दुनिया सरसब्ज़ और शादाब और शीरीन है। जैसे मीठी चीज़ से दिल भरता नहीं, खाने बैठते हैं ठंडी और मीठी हो तो दिल नहीं भरता, पेट जवाब दे देता है, लेकिन दिल फिर भी कर रहा होता है कुछ और खा लूँ। फरमाया दुनिया शीरी है, और फिर सरसब्ज़ चीज़ को देखने और उसमें रहने से आंखें नहीं थकती, बल्कि और दिल चाहता है इन सरसब्ज़ माहौल में रहें। तो फरमाया दुनिया खाज़िरतुन हुल्वतुन, दुनिया शीरी भी है और सरसब्ज़ भी है। तो अब इसकी सरसब्ज़ और शादाबी से बचना है, इसकी शीरीनी से बच के हमने आखिरत की मंजिल क्रॉस करनी है। अल्लाहु अकबर। मशाइख ने फरमाया जो रब को याद करने वाले बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं अद्दुनिया सहारतुन, दुनिया जादूगरनी है। दुनिया क्या है भाई? जादूगरनी है।
जादूगरी जैसे इंसान को अपनी तरफ इस कदर मायल कर लेती है, जहन मौफ हो जाता है, जहन और तरफ नहीं जाता। लोग कहते हैं ये किस खड्डे की तरफ जा रहा है, ये तो गिर जाएगा, फना हो जाता है। लेकिन जादूगर इस तरह उसको अपनी तरफ मायल कर लेते, उसको जहन में और कोई चीज़ होती नहीं। तो फरमाया अद-दुनिया सहारतुन, दुनिया जादूगरने की चीज़ है। जब इसका जादू जिस इंसान पे चल जाए वो आखिरत वाली मंजिल से गाफिल हो जाता है, वो दुनिया का होकर रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद नौजवानों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद कौन इंसान है? क्या पूछा? फरमाया कि मन अकियसन नास व अहज़मुन नास। या रसूलल्लाह, दुनिया के अंदर अक्लमंद और समझदार बंदा कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया। वो जवाब सुनने वक्त बहुत कम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत। क्या फरमाया? अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, कि दुनिया में अक्लमंद तरीन आदमी वो है जो मौत को ज़्यादा याद करे। और फरमाया अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत, और दूसरा अक्लमंद वो है, इंसान समझदार वो बंदा है जो हर वक्त मौत की तैयारी बहुत ज़्यादा करे। और बुजुर्गों ने वैसे कहा है कि दुनिया के लिए इतनी तैयारी करो जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतना तैयारी करो जितना उसमें रहना है। अब दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 100 बरस कोई रह लेगा, 150 बरस से बढ़ के तो किसी का सुना ही नहीं हमने। 100 बरस भी बड़ी बात है, वरना 60-70 की दिहाई में चल बसते हैं। तो अब आखिरत कितनी है? वो तो करोड़ साल है, वो तो अरब साल है, उसकी इंतहा है ही नहीं। अल्लाह अकबर। और तैयारी यह है कि दिन 24 घंटे में वक्त है ही नहीं कि हम उसकी तैयारी में मसरूफ़ हों। सुबह उठते हैं, बिजनेसमैन है तो उसके दिल में वही ख्याल है सुबह मैं अपनी अल्लाह अकबर फैक्ट्री से इतने टन माल निकाल दूं। और अगर कोई ऑफिस के अंदर है वो सोचता है कि मैं अपने ऑफिस में जाऊं, जो टेबल पे जितनी फाइल्स हों उसको मैंने कंप्लीट करके टेबल को खाली करना है, ताकि मैंने कुछ बड़े को राज़ी करना है, अपने अफसर को राज़ी करना है। शॉप वाला है या कोई बड़ी दुकान वाला है, मेट्रो वाला है, वो यही सोचता है लाखों का माल की आज सेल करनी है और कुछ नहीं है। दुनिया हमारा ये रुकावट दुनिया बन रही है। दिन भर में एक लम्हा नहीं, सुबह ये कभी ख्याल नहीं आता तिलावत आज नहीं की, ये ख्याल नहीं आता फ़र्ज नमाजें क़ज़ा हो गई हैं, ये ख्याल नहीं आता रब का ज़िक्र कितना किया है। कुरान करीम से हम पूछते हैं या अल्लाह तेरा ज़िक्र कितना करे। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह को तो इतना याद करो, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये सीगा अल्लाह अकबर, सीगा अल्लाह ने वो फरमाया, अशद कहते हैं सबसे ज़्यादा। कितना ज़्यादा? फरमाया इतना जिक्र करो तुम्हें दीवाना कहने लग जाए तो कोई हरज नहीं। तो तब तुम, क्योंकि दुनिया के अंदर सारे काम किस लिए करते हैं? दिल के इत्मीनान के लिए। तो कुरान से पूछते हैं कि इत्मीनान बिजनेस से मिलेगा, पैसे से मिलेगा, किस से मिलेगा? तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम इत्मीनान चाहते हो, पैसा कितने लोगों के पास है, रात नींद गोली खाए बगैर आती नहीं है। कितनी गाड़ियाँ भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, सुकून नहीं है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से दूरी हो गई, ताल्लुक माल्ला ख़त्म हो गया तो फिर परेशान तो होना ही है। तो तीसरी चीज़ मैं कह रहा था, तीसरी मंजिल अल्लाह के साथ ताल्लुक रखना। नफ्स उसकी रुकावट है, ख्वाहिशात तो कभी पूरी होती ही नहीं है। अपनी ख्वाहिशात हम तर्क कर देते हैं, बीवी और बच्चों की ख्वाहिशात तो पूरी होती नहीं हैं। फिर ये नफ्स रुकावट बनता है कि बंदे को अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने नहीं देता। दिल में यही ख्याल आता है यार आज छुट्टी का दिन है, बढ़ चढ़ के जिक्र करें, नहीं, आज ये खूब सोना है, नींद करनी है। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों ने क्या ही खूब कहा। बुजुर्ग सुभान अल्लाह, उनकी बातें पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा, अल्लाह अकबर, बुजुर्गों ने कहा कि दुनिया में सोकर तो सुकून मिलने वाला नहीं। अगर सोकर भी उठे और सुकून न मिला तो कहाँ सुकून मिलेगा? मर के सुकून मिलेगा, मर के भी सुकून न मिला फिर कहाँ जाएंगे हम? फिर वही होगा, काश के दुनिया में ये कर लेते,
आज ज़िंदगी है, रब ने मौका अता किया है कुछ करने का, अपने लिए आखिरत दुनिया में खुद बनाओ। ये नहीं कि हमारे मरने के बाद कोई बनाएगा, कोई नहीं। लाखों का पैसा अपने हाथों हम देखते हैं कि बाप फौत हो गया, उसकी करोड़ों रुपए की जायदाद उसके बच्चे अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। बाप के लिए सदका करने की तौफीक कभी नहीं हुई, बाप के लिए कोई मस्जिद तामीर करने का कभी तौफीक, बहुत कम लोग हैं जिनको तौफीक हो जाती है। अपने लिए मस्जिद बनानी है, किसी बच्चे को हाफिज कराना है, कर जाओ। वो बच्चा क़यामत तक पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा, जितने उससे सीख जाएंगे वो तुम्हें कब्र में ठंडक पहुंचती रहेगी। अल्लाहु अकबर। अपने लिए खुद कर जाएं। तो दो बातें आखिरी कह के मैं ख़त्म करूँगा कि मैं हाजिर हुआ हूँ पाकिस्तान से, रहीम यार खान से। वहाँ पर हमारे नाना जान थे हाफिज़ुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह। वो हाफिज़ुल हदीस थे, लाखों हदीस अल्लाह ने याद थी उन्हें। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो वो यादगार उनकी है। जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद उसका वाइस प्रिंसिपल हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह दीन के काम में यूँ ही सदा लगाए रखें, हमारे बच्चों को कुरान और हदीस का हाफिज़ बनाएं और हदीसों का आलिम बनाएं, यूँ ही दीन में लगा रखें। दुनिया भी साथ दीन, दुनिया को दीन बना दे। काम दुकान का हो लेकिन साथ अल्लाह की तरफ तवज्जो, वो दीन बन जाएगी दुनिया। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम तिजारत करते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्या करते थे? वो कपड़े का कारोबार करते थे। सैयदना उस्मान गनी वो बड़ी तिजारत करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन सारी रात अल्लाह के हुजूर सजदा-रेज़ होते थे, यानी कि अल्लाह से गाफिल हो जाते थे। माल बुरी चीज़ नहीं है, दुआ किया करो या अल्लाह हमें वो माल दे तो सखावत उस्मान भी अता कर। अल्लाह अकबर। तो वहाँ माशाअल्लाह 450 से ज़्यादा तलबा बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी तालीम, खाना पीना, बुक्स, रिहाइश सारा कुछ फ्री होता है। ठीक है, और एक बच्चे को हाफिज या आलिम बनाने का सालाना खर्चा पाकिस्तानी हिसाब से 20,000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं सारे साथियों से यही कहूँगा, अपनी तरफ से एक हाफिज आलिम बना ले। यूँ समझो कि एक मदरसा बना लिया हमने। मदरसे में जितने बच्चे उनके तवस्सुत से पढ़ेंगे, तुम्हें ज़िंदगी भर मरने के बाद सवाब मिलता रहेगा। तौफीक की बात है, तौफीक बढ़ चढ़ के हो तो मस्जिद में हिस्सा मिला लें, जहाँ पर अल्लाह अकबर ज़रूरत है। हमें मालूम होता है कि वहाँ रूही है, चोलिस्तान जिसे बोलते हैं, वहाँ पर अल्लाह को मस्जिदें नहीं, पानी नहीं, कुआं वहाँ पर खुदवा के हम लगा लेते हैं। तो बहरहाल कोशिश करें जितना हिस्सा हो, कम अज़ कम एक बच्चे को हाफिज़ बनाएं, आलिम बनाएं। उससे बढ़ के मस्जिद के कामों में, उससे बढ़ के माशाल्लाह वहाँ पर हमने एक ट्रस्ट बनाया है। मैंने कहा कि अल्लाह अकबर, कहते हैं ना कि ट्रस्ट और भी हैं। मैंने कहा कि दीनी मदारिस जैसा ट्रस्ट कोई नहीं है। वजह, कोई खाना देता है, कोई किसी को रिहाइश देता है। दीनी मदारिस वो हैं, ज़िंदगी भी संवार देते हैं, आखिरत भी बना के उसे मुकम्मल कंप्लीट इंसान बना के बाहर भेजते हैं। वापस आता है नमाज सीखी हुई है, वापस आता है कुरान का हाफिज है, वापस आता है वो एक मुस्तकिल इंसान है, उसे रब की पहचान नसीब होती है, वो माँ बाप का ज़ख़ीरा बन के निकलता है। और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। और हदीस में आता है कि अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ अंजाम होगा। बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन ये दुनिया जहन्नम में जाएगी। ये दुनिया जो है खुद जहन्नम में जाएगी। जब जा रही होगी तो कहेगी, या अल्लाह मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, जबकि तेरे प्यारे नबी का फरमान है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका अंजाम उसी से। या अल्लाह, मेरे चाहने वाले तो बहुत थे जिन्होंने तेरी परवाह न की, तेरे कुरान के हुक्म को ठुकरा दिया, लेकिन या अल्लाह वो तो सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह फरमाएंगे, वो लोग जिन्होंने दुनिया के लिए सारी ज़िंदगी गुजारी दुनिया के साथ, उनको भी जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल से, अल्लाह रब्बुल जलाल हमें कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की, रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। सुन्नत अदा।